Friends, welcome to our YouTube channel Gnan Manji Modern School. Myself Bhumi Mujibra. In Standard 9, we will start our first unit of computer subject. So, students, please open your books and see. Computers are multi-purpose machines that can be used to solve variety of problems in different fields. Computers have changed the way we live, work, and communicate. Computers are useful in industries, government, education, research, as well as entertainment sectors. From routine business activities in a given area to a spectacular task, computers are applicable everywhere. That is why a computer is called a multi-purpose machine. So students, our first topic is introduction of computer. So computer is a multi-purpose machine and to solve the variety of problems in many different fields. So computers have changed the way we live, work and communicate. Because the use of the computer, we are going to very easily to communicate with each other and complete our every work in a few seconds or few minutes. Computers are useful in industries, government, education, research as well as entertainment sectors. Let's know you all about it. From routine business activities in a given area to a spectacular task. Spectacular task means we can see और enjoy it. यानी कि हम इसको देख सकते हैं और इसको enjoy भी कर सकते हैं. Computers are applicable everywhere. Computers है वो सभी जगह पे applicable है. That is why a computer is called a multi-purpose machine. So, students, our next topic is working of a typical computer. वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर मीन्स कि हमारा जो टिपिकल कंप्यूटर है वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या है, उसकी सारी जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, उसका जो डेटा है वो कैसे हम स्टोर कर पाते हैं, उसको हम वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर बोल सकते हैं. Just as a calculator calculates, a driver drives, and a painter paints, computer computes. Computer computes means compute means to calculate, to do every work in computer. The computing here is not restricted to only mathematical computing, but to a variety of logical based tasks. यहाँ पे कंप्यूटिंग शब्द का मतलब ये नहीं है कि मैथ्स का ही जो कैलकुलेशन है वो करना है. इसके अलावा अलग अलग जो बेस्ड के टास्क है उसको भी कंप्लीट करना है. वन ओनली नीड्स टू सिस्टमेटिकली डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप क्लियर गाइडलाइंस फॉर द टास्क टू बी सॉल्व्ड. These guidelines, generally written in simple English language, are called algorithm. Computer once given proper set of instructions can perform operations like generating bills, reservation tickets, printing mark sheets, printing business reports or communicating messages. आप सबको तो पता ही होगा कि कंप्यूटर है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर सकता है. आपने कहीं शॉपिंग मॉल पे या फिर कई छोटे छोटे स्टोर पे गए होंगे तो अभी तो सभी जगह पे कंप्यूटर अवेलेबल है. तो आप देख सकते हैं कि जो उसका बिल होता है, जो भी आपने प्रोडक्ट जो भी आपने चीज़ खरीदी है उसका जो बिल होता है वो कंप्यूटर में बना सकते हैं. टिकट्स की रिजर्वेशन कर सकते हैं. मार्कशीट है या फिर बिजनेस की कुछ भी रिपोर्ट्स है उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन ऑल्सो डील विथ ऑडियो, वीडियो, ग्राफ्स एंड एनिमेशन बिसाइड्स टेक्स्ट एंड नंबर्स. कंप्यूटर है वो ऑडियो, वीडियो, ग्राफ्स और एनिमेशन को भी उसमें बना सकते हैं. आपने एनिमेशन मूवीज़ देखी होगी कई तरह की,
तो वो जो सारी एनिमेशन मूवीज़ है, कार्टून मूवीज़ है, वो सारे कंप्यूटर में ही बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। वंस द कंप्यूटर इज गिवन डेटा एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, it then performs the computations and generates result or performs an action as an output. When we give computer to any instruction, any data or any order to perform it on any task, it could be considered as a इनपुट। यानी कि अगर हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा डालते हैं, कोई भी जो चीज़ है उसको हमें रिज़ल्ट चाहिए, जो भी हमें उसका आउटपुट यानी कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जो हम कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं, तो जो भी हम एंट्री करते हैं उसको कंप्यूटर है अपनी लैंग्वेज में एज अ इनपुट रखता है, उसको इनपुट कहते हैं। Computer processes this input and presents result to the user. The result is called an output. Whenever we give some input, some instruction to the computer, it processes on it, works on it, and it will give us a result, which is considered as a output. जो भी हम प्रोसेस के लिए जो इनपुट करते हैं उस पर कंप्यूटर उसकी प्रोसेस करता है और जो हमें वो रिज़ल्ट देता है उसको हम आउटपुट बोल सकते हैं। कंप्यूटर कैन रिमेंबर दिस डेटा, कंप्यूटर है वो इस डेटा को याद रख सकता है। इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेटेड रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर यूज बाय स्टोरिंग द डिटेल्स इन मेमोरी। It stores all the details or all the information on it, and whenever we want this information it gives us। जो कंप्यूटर है उसमें हम कोई भी डेटा डालते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन डालते हैं, तो कंप्यूटर है वो उसको स्टोर करता है अपने अंदर, और कभी भी जब भी हमें चाहिए वो डेटा को वो हमें वापस देता है। This simple flow of working of computer is shown in figure 1.1। यहाँ पे जो 1.1 की जो फिगर दी गई है उसमें है वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर, यानी कि टिपिकल वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर का जो है वो है डायग्राम फिगर है। सो फर्स्ट वन इज अ यूज़र। We can see that there are some smiley faces in our diagram. See here, it can consider as a user. So user takes data and instruction from users. Input takes data and instructions from user. सो इनपुट है वो डेटा इंस्ट्रक्शंस जो भी है वो यूज़र से लेता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है, ये यूज़र है, उसमें इस एरो से इनपुट किया है डेटा, यानी कि इनपुट को जो डेटा है वो दिया है। नेक्स्ट प्रोसेस रिमेंबर्स डेटा एंड एग्जीक्यूट्स, process remembers data and executes instructions। जो प्रोसेस है वो डेटा को एग्जीक्यूट करता है और इंस्ट्रक्शंस उसकी लेता है, उसको उसके ऊपर प्रोसेस उसका करता है। एंड नेक्स्ट वन इज अ आउटपुट, प्रेजेंट्स रिजल्ट टू द यूज़र। जो आउटपुट है वो जो यूज़र है उसको रिज़ल्ट वापस देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से क्या होता है, तो इनपुट है वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इनपुट को यूज़र देता है, उसके बाद उसकी यहाँ पे प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो बनता है, यानी कि आउटपुट, और जो आउटपुट है वो यहाँ से सीधा किसको दिया जाता है, यूज़र को दिया जाता है। इस तरह से टिपिकल कंप्यूटर की जो
वर्किंग है, वर्किंग सिस्टम है, वो यहाँ पे हमको दिखाई गई है। सो नाउ इन बुक्स further it is not compulsory to repeat the instructions and enter large amount of data every time we use the computer. We can store the data and instructions within the computer itself in such a way that it can be understood by machine, that is in machine readable language. Storing such set of instructions is useful for repetitive performance of the task. Once the set of instruction in machine readable format called program is stored in the computer, it can be used many times with different set of data. This concept is known as a stored program concept. हम कोई भी हमारा डेटा है उसको हम बार बार तो लिख नहीं सकते, बार बार तो इनपुट नहीं कर सकते, उसमें टाइम बहुत ही लगेगा। इसलिए जो कंप्यूटर है वो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसके अंदर जो हमारा डेटा है उसको हम स्टोर कर सकें। और जो डेटा है उसको हम स्टोर करते हैं वो जो टास्क है, जो हमारा जो उसके रिपीटेटिव टास्क है उसको जो उसकी जो सारी की सारी जो फॉर्मेट है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, यानी कि जो कंप्यूटर है वो जिस लैंग्वेज में उसको रीड कर पाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और उसके बेस्ड ऊपर स्टोरेज के बेस्ड के ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग सैम्पल लिस्ट प्रेजेंट्स सम सैम्पल एप्लीकेशंस टू हाईलाइट यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट एरिया। सो हियर इज द सम uses of the computer in different areas. So first one is a ticket reservation. In ticket reservation, जब भी आप कोई भी टिकट को रिजर्वेशन करना, उसका रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और कंप्यूटर आप घर बैठे भी कोई भी टिकट है, बस की है, ट्रेन की है, फ्लाइट की है, उसको हम रिजर्व कर सकते हैं। बैंक ऑपरेशंस, बैंक के जो काम है, जो भी बैंक का वर्क है उसको हम कंप्यूटर के यूज़ से हम कर सकते हैं। यानी कि जो भी कस्टमर है, जो कुछ भी है, उन लोगों का जो डेटा है, उसका बैंक का बैलेंस कितना है, क्या है, उसमें कितने उसके अकाउंट्स है, उसको मैनेज करने के लिए बैंक ऑपरेशंस के लिए यूज़फुल है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि किसी भी चीज़ की यादी बनाना, यानी कि उसको लाइन बाय लाइन उसको मैनेज करना। एंटरटेनमेंट सच एज प्लेइंग गेम्स, कंपोजिंग म्यूज़िक एंड एडिटिंग मूवीज़। गेम्स खेलने में, म्यूज़िक कंपोज करने में और मूवीज़ का जो एडिटिंग है उसके लिए भी कंप्यूटर है वो यूज़फुल है। नेक्स्ट वन इज़ अ टीचिंग। टीचिंग में तो अभी आप सबको पता ही होगा कि किस तरह से कंप्यूटर यूज़फुल है, क्योंकि 1 साल से हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं घर बैठे। तो जिसके भी पास कंप्यूटर है वो ये जो वीडियो है वो कंप्यूटर में देख सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग है उसको करने के लिए कंप्यूटर यूज़फुल है। Correspondence and publishing, composing newspapers, writing letters and books etc. Corresponding and publishing यानी कि किसी को कनेक्ट करना और जो बुक्स है, न्यूज़पेपर है, उसको पब्लिश करने के लिए यूज़फुल है कंप्यूटर। स्पेस एप्लीकेशंस, स्पेस के जो रिसर्च होते हैं उसके लिए भी कंप्यूटर यूज़फुल है। रोबोटिक्स यानी कि रोबोट्स बनाने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। ईमेल एंड चैटिंग। ईमेल, किसी को आप मैसेज भेजना चाहते हैं इन वर्ल्ड, तो आप इन अ फ्यू सेकेंड्स उसको
भेज सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सेट्रा, जो हमें इंटरनेट पे देख सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स होती है, तो उसको डेवलप कैसे किया जाता है, तो उसको डेवलप करने के लिए उसकी अलग अलग लैंग्वेजेस है, उसकी अलग अलग कोडिंग है, उसके थ्रू कंप्यूटर के थ्रू वेबसाइट है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट एरियाज। Now further move on next topic. Next one is a simple model of a computer. So next one is a simple model of a computer. The simple model of a typical computer is based on the working of a computer shown in the figure 1.1 as we have discussed. So now instructions are needed to make computers perform some actions. To obey instructions provided by the user and perform computations, a computer needs to have a mechanism to input. The input mechanism helps in feeding data as well as instructions into the computer. This mechanism is called input unit. जो इनपुट मैकेनिज़्म है, उन इनपुट की जो सिस्टम है, यानी कि जो हम डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी है, वो हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को कंप्यूटेशन के लिए, कंप्यूट करने के लिए, तो उसको इनपुट की मैकेनिज़्म उसका यूज़ करना पड़ेगा। उसको डेटा है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो कंप्यूटर में डालने के लिए। तो ये जो सारी की सारी जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज़्म है, उसको हम इनपुट यूनिट बोल सकते हैं। डिवाइसेस यूज्ड फॉर द इनपुट प्रोसेसेस आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। Typically, input devices such as mouse and keyboards are used for this purpose. So now here discussed about the devices of input devices. Which one is the input devices? So we can say that the mouse and keyboards are used for the input purpose, यानी कि input devices. Next one is a input provided through the input mechanism is stored in memory of the computer and further processed by a mechanism called processing unit or processor. जो इनपुट है, वो जो इनपुट मैकेनिज़्म है, वो सारी की सारी जो मैकेनिज़्म है वो एक मेमोरी में स्टोर होती है फॉर फ्यूचर यूज़, यानी कि फ्यूचर में अगर हमें वो वापस डेटा चाहिए तो हम वहाँ से देख सकते हैं। उस मैकेनिज़्म को प्रोसेसिंग यूनिट, और जो जिसमें हम स्टोर करते हैं उसको हम प्रोसेसर बोल सकते हैं। रिजल्ट आर प्रेजेंटेड टू द यूज़र थ्रू आउटपुट मैकेनिज़्म कॉल्ड आउटपुट यूनिट, यानी कि आउटपुट है उसको जो आउटपुट है उसको ढूंढने के लिए जो यूनिट है उसका जो यूज़ होता है उसको आउटपुट यूनिट हम बोल सकते हैं। टिपिकल आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। सो हियर say that the monitor and printer both are the output devices. In short, the input memory, processor and output are the basic components of a typical computer. So underline this line that input, memory, processor and output are the basic components of a typical computer. जो हमारा इनपुट, मेमोरी, प्रोसेसर एंड आउटपुट है, जो बेसिक कंपोनेंट है, जो टिपिकल है कंप्यूटर का, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। जो टिपिकल कंप्यूटर है उसका हम उसको कंपोनेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेनी है फॉर द यूज़ ऑफ एग्ज़ाम।
Now, next one is a input unit. Input, what means input unit? जो हमने उसकी जो देखा है इनपुट जो डेटा हम उसका करते हैं जो भी कंप्यूटर में उसकी जो मैकेनिज्म है जो वहाँ जहाँ पे जो यूनिट में स्टोर होता है उसको हम इनपुट यूनिट बोल सकते हैं. So now discuss about what is input unit. In input unit, the input unit provides a facility to enter data and instruction into the computer. Input mechanism supports many devices such as keyboard, mouse, joystick, barcode reader, universal serial bus यानी कि USB devices, hard disk and compact disk. So input unit की जो उसका यूज़ है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए. इनपुट मैकेनिज्म सपोर्ट्स मैनी डिवाइसेस. जो इनपुट की जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करता है. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर. आप कहीं भी मॉल में या वहाँ पे गए होंगे, आप शॉपिंग मॉल में गए होंगे या फिर मिनी स्टोर्स में गए होंगे तो वहाँ पे बारकोड रीडर ऐसा उसका मशीन होता है. नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि USB. आप लोग USB से बहुत ही उसको जानते हैं. USB कैसा होता है, USB जो पिन होती है वो कैसी होती है. जो उसका डिवाइस होता है USB डिवाइस उसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, वो कैसा होता है. हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CDs. डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस टेक डेटा इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर मेमोरी. जो डिफरेंट डिवाइसेस है जो वो अलग अलग फॉर्म में डेटा को लेता है और कंप्यूटर को उसकी जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको देता है. फॉर एग्जांपल, यूज़ ऑफ कीबोर्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी मच सिमिलर टू द यूज़ ऑफ अ टाइपराइटर. द यूज़ ऑफ कीबोर्ड एंड द टाइपराइटर आर बोथ सेम. टू टाइप कीबोर्ड और टाइपराइटर है उसका सेम यूज़ है, उससे आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. Another way to input data is reading through barcode reader. Barcode reader is normally seen at superstore. Remember when you purchase a pack of biscuit, the shopkeeper uses a small device and presses a button on the device. With sound of a beep, the barcode printed on a tag of the biscuit pack is read and copied to the computer in order to generate बिल. आप सबको पता ही होगा कि आप जब शॉपिंग मॉल में या फिर जो सुपर स्टोर्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं, कोई बिस्किट का पैकेट है वो परचेज़ करते हैं, जब बिल बनाना होता है तब वो आप उसको शॉपकीपर को वो बिस्किट का पैकेट देता है. उसके हाथ में छोटी सी एक मशीन होती है, वो जब ब्लैक वाइट वैसी लाइन होती है उसको हम बारकोड बोलते हैं. वहाँ पे जो शॉपकीपर है वो उसको उस मशीन को रखेगा. जब भी वो रखेगा तो कंप्यूटर में उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी कि ये जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, उसकी कंपनी कहाँ है, वो कहाँ पे बना है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और उसकी प्राइस क्या है. तो इससे आप उसका बिल बना सकते हैं. माउस इज़ ऑल्सो यूज टू इनपुट डेटा. माउस है वो डेटा को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में भी बहुत ही ज़रूरी है. माउस इज़ अ डिवाइस that controls movement of the pointer, also known as the cursor, on the displayed screen. जो माउस है वो डिवाइस जो माउस डिवाइस है वो अलग अलग
उसका जो पॉइंटर होता है, जो कर्सर रहता है, वो हम स्क्रीन पे यानी कि मॉनिटर पे देख सकते हैं। इट इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विथ अ फ्यू बटन्स विच यू कैन रोल ऑन अ हार्ड सरफेस। जो माउस पैड उस माउस का होता है उसको हम हार्ड रख सकते हैं और उससे हम कुछ भी जो मॉनिटर की स्क्रीन पे यानी कि कंप्यूटर में कुछ भी आपकी जो मेनू है, जो भी आपका फोल्डर है, उसको आप मूव कर सकते हैं। एज माउस इज मूविंग ऑन द सरफेस द पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन इज ऑल्सो मूव्ड। यानी कि माउस है उसको आप जो उसकी सरफेस है उस पर आप रब करेंगे या फिर उसको मूव करेंगे तो माउस का जो पॉइंटर है यानी कि जो उसका हम कर्सर बोलते हैं, वो जो डिस्प्ले स्क्रीन है हमारी उस पर वो भी मूव करेगा। अ माउस मस्ट हैव एटलीस्ट वन बटन। माउस का एक बटन तो होता ही है। मोस्ट ऑफ द इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट द डेटा इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस ऐसे हैं कि वो अपना जो डिवाइस होता है वो उसको जो भी उसका जो डिवाइस है, मोस्ट जो इनपुट डिवाइसेस है उसको कन्वर्ट करता है यानी कि मशीन रीडेबल फॉर्म। यानी कि जो कंप्यूटर है वो ओनली बाइनरी लैंग्वेज ही उसकी है, जो 0 और 1 वाली उसको ही रीड करता है, लेकिन जो कुछ डिवाइसेस है उसको मशीन की रीडेबल फॉर्म जो है उसमें उसको कन्वर्ट करता है ताकि मशीन है वो उसको अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सके। सो स्टूडेंट्स, हमने आज क्या क्या देखा है उसको हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। हमारा जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर यानी कि जो टिपिकल कंप्यूटर है वो कैसे वर्क करता है, उसमें यूज़र है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन उसको इनपुट करता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं उसकी जो प्रोसेस पूरी की पूरी होती है और उसका जो आउटपुट यानी कि जो प्रेजेंट रिजल्ट मिलता है वो वापस उसको यूज़र को भेज देता है। ठीक है, ये हमने सीखा है आज। और नेक्स्ट हमने क्या सीखा है, तो नेक्स्ट है कि जो कंप्यूटर के डिफरेंस एरिया में जो कंप्यूटर का यूज़ है, टिकट रिजर्वेशन में, बैंक ऑपरेशन में, टीचिंग में, स्पेस एप्लीकेशन, रोबोट एक्सेट्रा, जो भी जिस प्लेस पे हम यूज़ कर सकते हैं उसको हमने देखा है। और नेक्स्ट हमने सिंपल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर यानी कि जो सिंपल मॉडल है कंप्यूटर का वो कैसे वर्क करता है वो हमने देखा है। उसमें हमने इनपुट यूनिट क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, वो सब भी हमने देखा है। इन इनपुट यूनिट सीरियल बस, जो बारकोड स्टिकर का जो बारकोड रीडर है, जॉयस्टिक है, वो सारे क्या है इनपुट डिवाइसेस है, उसके बारे में हमने इनपुट में देखा है। जो टाइपराइटर है वो और कीबोर्ड बोथ आर सेम है, और जो बारकोड रीडर है वो कैसे वर्क करता है वो भी हमने देखा है। और लास्ट में जो हमारा जो था कि जो माउस है वो पॉइंटर है वो कैसे उसको मूव करता है, हमारे जो भी डिफरेंट पार्ट में जो भी कुछ है उसको जो भी हमारे जो उसको फाइल और फोल्डर जो भी बोलते हैं, जो हमें मॉनिटर की स्क्रीन में दिखाई देता है उसको हम कैसे मूव करते हैं वो भी हमें इसमें दिखाया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट का ओवरव्यू अभी हम देख लेते हैं, बाकी का जो डीप में है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, मेमोरी मीन्स कि जो भी हम स्टोर करते हैं, जो भी डेटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको जहाँ भी स्टोर करते हैं वो जो स्पेसिफिक प्लेस है उसको मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी यानी कि मेमोराइज यानी कि याद रखना, मेमोरी यानी कि हमारे जो ब्रेन में भी मेमोरी होती है ना, सबको पता है, जिसकी वजह से आप अपना जो भी स्टडी का है वो उसको याद रख सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है,
जिससे हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी डेटा उसमें डालते हैं, उसको सेव करते हैं, वो वहाँ पे उसको याद रख सकता है। एंड कंट्रोल यूनिट यानी कि जो भी आपने जो भी डेटा डाला है उसको, उसमें कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है, तो कंट्रोल यूनिट है वो ALU यानी कि एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है हमारा, उसकी मदद से उसको कंट्रोल करता है। उसमें अगर कोई भी एरर है, कोई भी अलग कोई भी उसका जो CPU है उसमें उसकी जो अलग कोई भी एरर आई है, जो एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स है, जो उसमें कोई लॉजिक लगाना पड़ता है, तो वो ALU यानी कि कंट्रोल यूनिट में वो सॉल्व होता है और उसके बाद हमें इनपुट मिलता है। तो ये है ओवरव्यू ऑफ मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये मेमोरी और कंट्रोल यूनिट डीप में कि उसमें वो कैसे वर्क करता है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।